Welcome all of you class. I'm Digesh Kumar Pandey. Class, today I take a chapter, the parties and the party system in India, and the topic is the change of the political succession. Class, Pandit Nehru was died on May 1964, and on that day when Pandit Jawaharlal Nehru was dying, there was a question in our country कि after the death of Nehru कौन इसका सक्सेशन होगा. आफ्टर नेहरू वॉज अ वेरी बिग लीडर, इंटरनेशनल लेवल के लीडर थे, एंड दैट इज़ द क्वेश्चन इन आवर कंट्री कि आफ्टर नेहरू हु वाज टेकिंग द वर्क ऑफ लीडरशिप ऑफ आवर नेशन. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि आफ्टर नेहरू व्हाट, कि आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू क्या होगा. क्या वी विल कंटिन्यू द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, और आवर कंट्री वाज गोइंग इन द हैंड ऑफ मिलिट्री, या फिर जो चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के क्या वो फुलफिल हो पाएंगे, जो डेमोक्रेसी सेटअप करने की जो चैलेंजेस थे क्या फुलफिल हो पाएंगे. बिकॉज ऑन दैट टाइम our country was faced so many problems like poverty, inequality, communal and regional division. ठीक है. So we have a lots of challenges. So after the death of Nehru, who will able to handle this multiple challenges of country? Could the India will be able to face these challenges under any leadership, or कि India will going in the hand of a military or any dictator type of rule, such like most of the Asian and African country was going in the hand of dictators by one party rule या one leadership. तो दिस वॉज अ बिग क्वेश्चन कि इंडिया का क्या होगा. बट ये जो वरीज थी उसमें जो है सेकंड जो वरीज थी कि व्हाट क्या होगा, दैट वाज अ वेरी सीरियस फॉर अस. क्योंकि अभी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे नेशन बिल्डिंग की, कि लाइक इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी टू, और हमारे कंट्री में लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल और रीजनल जो डिवीज़न था, ये जो प्रॉब्लम थे उसको भी हैंडल करना था, और नेशन बिल्डिंग का वर्क रह गया था. तो सेकंड क्वेश्चन वाज वेरी सीरियस कि व्हाट क्या होगा. क्लास, द नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री. Class, after the death of Pandit Jawaharlal Nehru, there is a common view in the Congress party कि Lal Bahadur Shastri was a popular leader within the Congress, and that was on that time the president of the Congress is K. Kamraj. And he was discussing with the other member of the Congress party and other the Congress member of the parliament who will take the next responsibility. So there is a common consensus कि Lal Bahadur Shastri was a undisputed leader. Lal Bahadur Shastri was known for his simplicity, for his honesty. Previously he was working under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. He was also work as a railway minister during the cabinet of Pandit Jawaharlal Nehru, but he was give resignation because
due to some railway accident, and he was take the moral responsibility for this. And in the last day of Pandit Jawaharlal Nehru, of their last day, he was dependent upon, most of the time Pandit Jawaharlal Nehru was dependent to Lal Bahadur Shastri. And now after the discussion in the Congress, K. Kamraj was proposed the name Lal Bahadur Shastri as the next Prime Minister. And Pandit Jawaharlal Nehru, after the death of Pandit Jawaharlal Nehru, K. Kamraj was choose the leader of the Congress as a Lal Bahadur Shastri. And now Lal Bahadur Shastri was come as the next Prime Minister in our country. Class, Pandit Jawaharlal Nehru was taking this responsibility of Prime Minister from 1964 to 1966, and these 2 years was a very crucial, because first of all Pandit Jawaharlal Nehru was because in these 2 years Lal Bahadur Shastri was taking the responsibility of economic recovery, because we already faced the attack of China, and we have lots of problem of economic improvement. So Lal Bahadur Shastri was trying to remove the country from the economical crisis, and within these 2 periods, the next challenges is the attack of Pakistan in 1965, and on that occasion Lal Bahadur Shastri was bravely give their answer to Pakistan, and ultimately on 10 January 1966 he was expired in the Tashkent. Currently Tashkent is the capital of Uzbekistan, and which is situated under the USSR, and where Lal Bahadur Shastri was going there in Tashkent to signing the Tashkent Agreement, and with the President of Pakistan, Muhammad Ayub Khan, who was the President of Pakistan. Lal Bahadur Shastri was going there to sign the Tashkent Agreement, and after this, on 10 January 1966, Lal Bahadur Shastri was dead. He was given a slogan, Jai Jawan and Jai Kisan. He was encouraged the farmers to recover the economy, and he was also support our soldiers, because we fight bravely in 1965 against the Pakistan. So it was a very popular slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, given by Lal Bahadur Shastri. Class, after the death of Lal Bahadur Shastri, the next leader was Indira Gandhi. But it was not easy for the K. Kamraj to make her a Prime Minister. There was a very tough competition between Morarji Desai and Indira Gandhi, because Mr. Morarji Desai was previously served as the Chief Minister of Bombay Presidency, which was later become the Maharashtra and Gujarat, and Morarji Desai was a very senior leader, and Indira Gandhi was a very
leader, but Indira Gandhi was also experienced under the prime ministership of Pandit Nehru. Indira Gandhi was hold the seat of president of Congress, and also under the Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi was work as the Minister of taking the charge of Minister of Information, and there was a very tough competition between these two, but the problem was solved with very easy by ballot paper, secret ballot paper voting. Indira Gandhi was got more than Indira Gandhi was got more than 2/3 of the party's MP. Indira Gandhi was got the support from 2/3 of the MPs of the Congress parties, and this was the majority of our democratic system. It was decided that next PM is the Indira Gandhi, and the old leader, the syndicate leader like K. Kamraj and other Congress leader give the chances Indira Gandhi because they were thinking Indira Gandhi was a very new leader, and she was dependent upon the senior leaders for their advice and guidance. So the senior leader of Congress like K. Kamraj and syndicate leaders support the Indira Gandhi for a next prime ministership, and now Indira Gandhi was chosen new prime minister for 1 year only, because 2 year Nehru, 2 year Lal Bahadur Shastri, and next 1 year for Indira Gandhi. But this was a time when the India was chasing so many challenges like failure of monsoon, drought, and so many economical crises our country was facing on that time. And within 1 year, Prime Minister Indira Gandhi has led to the party in the Lok Sabha election. क्योंकि 1 साल के बाद जो इलेक्शन होने वाले थे क्लास, एंड जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी कंट्री की और भी सिचुएशन को ख़राब कर रही थी, एंड इंदिरा गांधी वाज ट्राइंग टू गिव देयर कंट्रोल एंड परफॉर्म फॉर देयर पार्टी. क्लास when Indira Gandhi was complete 1 year, now the time was come for the first general election. But for next general election, the fourth general election, which was organized in 1967. First of all, class, in this election, Indian National Congress was going to fight without Nehru. बिना नेहरू के ही ये इलेक्शन लड़ने जा रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड सब कुछ अब कांग्रेस के लिए इजी नहीं था, बिकॉज इन द अब्सेंस ऑफ नेहरू कोई ऐसा लीडर कांग्रेस में नहीं था जो इनको रिप्लेस कर सके, नेहरू की जगह ले सके. एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज गोइंग टू इन दिस इलेक्शन विदाउट नेहरू. ठीक है, और ये जो सिचुएशन था इसमें कंट्री में बहुत सारी चैलेंजेस थी. थोड़ा उसको हम लोग पहले समझ लें, और इन क्या क्या जो है इलेक्शन के समय क्या क्या समस्याएं थी हमारे कंट्री में. ठीक है, और जो 1916 का एरा था वो इकोनॉमिक क्राइसिस से भरा हुआ था. मानसून बार बार फेल हो जा रहे थे. मानसून फेल होने की वजह से बारिश नहीं हो रहे थे. ड्रॉट की समस्या, सूखे की समस्या बनी हुई थी, और इसकी वजह से बार बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो गिरते ही जा रहे थे. बहुत ही सीरियस फूड शॉर्टेज थी.
अनाज की कमी हो रही थी हमारे देश में क्लास, और इसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी लगातार कम होते चले जा रहे थे हमारे यहाँ। उनके यहाँ उसका जो रिजर्व था फॉरेन एक्सचेंज का वो भी हमारे यहाँ कम होता चला जा रहा था क्लास। एंड ड्रॉप द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें भी कमी आ रही थी, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो उसका हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो भी कम होते चले जा रहे थे। एंड कम्बाइंड विथ अ शार्प राइज इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डाइवर्जन ऑफ अ रिसोर्स फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो भी हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान किया हुआ था कि हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे, वो सब किसकी तरफ डाइवर्ट हो गया, मिलिट्री एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो 1960 का एरा था इट वाज अ वेरी डेंजरस डिकेड, और हमारे पास जो भी रुपए पैसे थे वो ज़्यादातर मिलिट्री एक्सपेंडिचर में ही खर्च हो रहे थे क्लास। One of the first decision of the Indira Gandhi government was to devaluate the Indian rupees. इंदिरा गांधी का ये बड़ा फैसला था कि उन्होंने इंडियन रुपीज़ को डिवैल्यूएट किया, एंड द रीज़न इज़ द प्रेशर ऑफ यूएस, अमेरिका का जो प्रेशर था इंडिया के ऊपर उसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। एंड अर्लियर पहले क्या था, $1 जो है could be purchased for less than ₹5, यानी अगर आपको $1 खरीदना है तो आप ₹5 से कम में $1 खरीद सकते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने रुपीज़ को डिवैल्यूएट कर दिया, देन $1 की जो वैल्यू थी वो ₹7 से ज़्यादा हो गई क्लास। तो इस तरह से इंदिरा गांधी का जो फैसला था रुपीज़ को डिवैल्यूएट करने का, तो इसके इम्पैक्ट क्या थे क्लास, द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ द प्राइस राइज, और इसका ये असर हुआ कि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन में हर चीज़ों के दाम बढ़ने लगे। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कम्युनिटी, जो आवश्यक सामग्री थे उनके जो उनके जो दाम बढ़ गए, इसकी वजह से लोग जो है विरोध प्रोटेस्ट के लिए बाहर आए। फूड सिक्योरिटी की समस्याएं हमारे यहाँ खाद्यान्न की बनी हुई थी। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही थी। एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री जो बहुत ही हमारी ख़राब थी। बंद एंड हड़ताल्स वेर कॉल्ड फ्रिक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री, और इसके विरोध में पूरे देश में बंद और हड़तालों का आयोजन किया जाने लगा था। गवर्नमेंट सा the protest as the law and order problem, not as the expression of people's problem। देखो गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था, गवर्नमेंट ने लोगों के इन प्रोटेस्ट को, बंद को, हड़ताल को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को समझा के रूप में समझा। गवर्नमेंट ने ये नहीं एक्सेप्ट किया कि वाकई में लोगों की प्रॉब्लम है और लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट का जो ये एटीट्यूड था, इसकी वजह से पीपल्स एंड गवर्नमेंट में कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, दिस फर्दर इंक्रीज द पब्लिक बिटरनेस एंड द रेनफोर्स पॉपुलर अनरेस्ट ना, इससे जनता में और असंतोष को जन्म लिया। द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च द स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने हमारे देश में जो है समानता को बढ़ाने के लिए जो है तमाम तरह के मूवमेंट्स स्टार्ट किए। वी विल रीड नेक्स्ट चैप्टर अबाउट हाउ अ ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट हु सेपरेटेड फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी। देखो आपने अभी आप पढ़ोगे कि कैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी ब्रेक हुई, तो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म में दो पार्टीज बनी 1962 के चाइनीज़ अटैक के बाद। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म थी, इसी से कम्युनिस्टों का एक ग्रुप निकला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एमएल, मार्क्सिज्म एंड लेनिन।
तो CPIM जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी, उसी इसका एक जो है पार्ट था कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिन। और ये जो पार्टी थी वो जैसे वेस्ट बंगाल में उन्होंने किसानों के लिए जो हथियार उठाया, किसानों के हक के लिए आर्म एग्रेरियन स्ट्रगल, किसानों को लेकर के वो हथियारों के साथ स्ट्रगल शुरू कर दी और किसानों के विद्रोह को संगठित करके, उन किसानों को संगठित करके सरकार के खिलाफ वो विरोध पे उतारू हो गई। तो ये भी एक चुनौती हमारे यहाँ थी, सरकार का विरोध था बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसानों को लेकर के उन्होंने मूवमेंट चलाए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिन। चारू मजूमदार वाज द लीडर विच वाज फर्दर नोन एज नक्सलाइज मूवमेंट के रूप में भी ये जाना गया क्लास। तो कंट्री में पूरी तरफ से देश में जो है असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन था, ठीक है। महंगाई बढ़ी हुई थी, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी हर चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, अनाज की कमी थी और अनाज का दाम लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। और सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने कांग्रेस को घेरना शुरू किया, कांग्रेस का अपोज करना शुरू किया। तो और इस समय एक नया जो है आइडियोलॉजी आया, नॉन कांग्रेसिज्म, यानी कि देखो जो राम मनोहर लोहिया थे सोशलिस्ट पार्टी के, ही वाज सेइंग कि अगर जितने भी नॉन कांग्रेस वोट हैं अगर वो एकजुट हो जाए तो कांग्रेस का सामना किया जा सकता है, बिकॉज जो कांग्रेस की पार्टी है वो अनडेमोक्रेटिक है, वो लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी को हटाना ज़रूरी है और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सारे नॉन कांग्रेस वोट अगर एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो यही जो थिंकिंग थी राम मनोहर लोहिया की। एंड ऐसे केस में जो है जब 4th जनरल इलेक्शन हुआ 1967 में, तो जितनी भी नॉन कांग्रेस वोट्स थे उनको कलेक्ट किया गया, ठीक है। और इसकी पहले से प्लानिंग राम मनोहर लोहिया ने करनी शुरू कर दी, जो और अदर्स अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके साथ हाथ मिलाया कि आफ्टर द इलेक्शन या इलेक्शन के समय जो कोalition की क्या पॉसिबिलिटी है भी डिस्कस हुआ। देन जो इलेक्शन का जो नतीजा था वो बहुत ही सरप्राइज करने वाला था। जो 1967 का जो 4th जनरल इलेक्शन था, इट वाज नोन एज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक। एक पूरी तरह राजनीति में हमारी भूचाल आ गया, बिकॉज इसका जो रिजल्ट था, कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। किसी तरह से जो लोकसभा में थी अपनी पोजीशन को बना पाई, सरकार बचा पाई कांग्रेस की गवर्नमेंट, बट विद द लोएस्ट टैली ऑफ द सीट एंड शेयर ऑफ द वोट फ्रॉम 1952। लेकिन कांग्रेस को 4थे जनरल इलेक्शन में बहुत ही कम सीटें भी मिली अब तक के, तो पिछले चुनाव की तुलना में और कम परसेंट वोट भी थे, ठीक है। और हाफ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधीज कैबिनेट वह डिफीटेड। इंदिरा गांधी की कैबिनेट के आधे मंत्री चुनाव हार गए। और जो बड़े बड़े नेता जैसे तमिलनाडु से के कामराज, महाराष्ट्र से SK पाटिल और वेस्ट बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से KV शाह, ये बड़े बड़े नेता जो थे कांग्रेस के, चुनाव हार गए। और ये जो 4th जनरल इलेक्शन था, इसमें राज्यों में भी स्थिति बहुत ही स्टेट लेवल पे ख़राब रही। लगभग 7 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाई, और फिर 7 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाई। फिर और इसके अलावा 2 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। इस तरह से जो 9 स्टेट्स थे
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला, इन 9 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी।